Good morning, all. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. So we'll discuss about your doubt. First one, discuss that an elevator in which a man is standing is moving upward with a speed of 10 meter per second. The man drops a coin from a height of 2.4 meter from the floor of elevator. It reaches the floor of elevator after a time of. तो इसमें मतलब ये पूछा कि like about which frame of reference we should observe it. तो just remember that आप कोई भी frame of reference ले सकता है observation के लिए. It is not necessary that we should take the frame of reference as Earth or we should take frame of reference as the lift. Okay. तो मतलब जो डाउट ऐसा पूछा था कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, तो आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकता है, उसमें आंसर तो अलग नहीं रहेगा, बट इसका जो स्यूडो फोर्स हम लोग लिखना है नहीं लिखना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर. So assume that if this lift is moving upward direction with an acceleration a, and in the first situation it is observed by an observer on the lift, or in second situation it is observed by an observer on the ground. मतलब कोई भी कहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकता है. अगर हमने ए ऑब्जर्वर के हिसाब से देखेगा which is on the left, तो ऑब्जर्वर is in a frame of reference which is moving with an acceleration a, तो with respect to ऑब्जर्वर हम लोग pseudo force कंसीडर करना पड़ेगा. तो इसमें दो फोर्स रहेगा, एक mg रहेगा और ma रहेगा with respect to this observer. अगर हमने with respect to observer on the ground कंसीडर करेगा तो observer is not accelerating, तो over here we'll write it is moving, it इसके ऊपर only mg लिखेगा, pseudo force नहीं लिखेगा. that is only one difference. Okay. तो आप कोई भी कहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकता है, बट इट विल बी
more easy to solve the question if you are considering the observer is inside the lift, and with respect to that observer we can write the pseudo force. But इस situation में pseudo force भी नहीं आएगा because question में क्या दिया है, it is moving with the speed of 10 meter per second. So it is moving with the constant velocity, not with acceleration. तो acceleration 0 है तो pseudo force तो नहीं लगेगा. So we can write this with respect to an observer on the left. This is going to move with the like only one force, which is mg. So its acceleration रहेगा. And this lift is at a like the coin is dropped from a height of 2.4 meter. So with respect to an observer over here, this object is going to travel a distance of 2.4 and acceleration due to 9.8 है, तो हम लोग time का value मिलेगा by using the equation s is equal to ut plus half at square. तो displacement हो गया 2.45, initial velocity is 0, half into acceleration हो गया 9.8 into t square. तो क्या होगा 4.5 by 9.8, that is 1 divided by 2 will be equal to the value of t square, और t का value क्या आएगा 1 by root 2 हो जाएगा. Got it? सर इसमें मींस 10 मीटर पर सेकंड का कुछ यूज नहीं है. नहीं वो 10 मीटर पर सेकंड कुछ यूज नहीं है बिकॉज वो खाली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एक्सेलरेशन 0 है. तो एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग को pseudo force कंसीडर करने का जरूरत नहीं. दैट इज ओनली वन थिंग. और इसमें कुछ यूज क्वेश्चन आई थिंक वी डिस्कस्ड इट इन द क्लास. Sir, Sir, I sent you one more. Yeah, if you send a question it will be discussed, it will discuss in the class. Okay, sir. बोलो बेटा. So can you leave us 5 minutes early as our board results are coming? एक बार बोलो. 5 minutes early, reason? Sir, because Sir. SSC Because the SSC board is result is there at 1 p.m. Yes, sir. Okay, so why you are worried about sir, this? because that it gets then Sir, the link get breaks, matlab crash down, and then Okay. Okay. So you are having a very good idea about the government and their system. Huh? yes sir. Okay. Yeah, definitely. thank you, sir. In question number 37, it is given that a force of 150 Newton produce acceleration of 2 meter per second square in a body, and force of 200 Newton produce an acceleration of 3 meter per second square. The mass of body and coefficient of kinetic frictions are. So assume that an object is kept on a horizontal surface and we are exerting some force. तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्सर्ट करेगा और external force को exert करेगा. In the first situation, assume that we are in an out of mass which is kept on a horizontal surface. तो इसका weight exert करेगा mg, and that will be equal to normal reaction n. And we are exerting a force of 150 Newton towards right, and it produces an acceleration of 2 meter per second square. And let's say friction force is also acting on the object towards left. So we can write in the first situation, अगर इसके लिए equation लिखेगा तो क्या होगा 150 minus f net force is equal to mass into acceleration. That we can take it as nothing but m into 2 over here. Mass into acceleration, which we can take it as m into 2. Equation number 1. अभी हम second situation में लिख सकता है net force 150 minus f is equal to m into a, right? अभी हम लोग सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो फोर्स का वैल्यू वो इंक्रीज किया है बट फ्रिक्शन फोर्स तो सेम ही रहेगा, एंड वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर हियर. तो इट इज गोइंग टू मूव विद एन एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन अस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यू कैन राइट द सेकंड इक्वेशन, दैट इज 200 minus f is equal to 3 into m या m into a. इक्वेशन नंबर 2. गॉट इट? अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन को, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम लोग इसका मतलब दोनों ऐड करके एक वैल्यू मास का वैल्यू निकाल सकता है. तो या हमने इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2 minus 1. So if you are going for equation number 2 minus equation number 1, we'll get the value for it, right? So yeah, 200 minus 50, 150, that we can take it as 50 is equal to nothing but m, 3m minus 2, 2m.
तो m का वैल्यू क्या होगा 50 किलोग्राम होगा। अभी हमको फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है। तो आप कोई भी इक्वेशन में m का वैल्यू पुट कर दो तो आपको f का वैल्यू मिलेगा। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन से हम लोग लिख सकता है द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू m। m का वैल्यू हमने 50 फाइंड आउट किया था तो 100, so 150 minus 100 that we can take, that is equal to 50. so frictional force का वैल्यू रहेगा 50 एंड हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। सो 50 इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, mg होता है। एंड m का वैल्यू कितना था, m का वैल्यू 50 था, तो 50 इनटू gg का वैल्यू कितना है 10 है। तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी इक्वल टू 1 by 10 या 0.5 0.1। ऑलराइट, next one, it is given that a heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.5, the maximum percentage of length of chain that can hang over one edge of table is. So assume that we are having a heavy uniform chain lies on the horizontal table. तो मान लो this is representing our horizontal table, तो इसके ऊपर एक चेन है ऐसा, तो इसका थोड़ा पोर्शन नीचे है और इसका जो मतलब इसका सरफेस नहीं है। if coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.5, तो let's say इधर का coefficient of friction का value mu which is 0.25 is given. The maximum percentage of length of chain that can hang over one edge of table is. तो मान लो इसका जो टोटल लेंथ है लेट्स से दैट इज इक्वल टू L, मतलब जो चेन का टोटल लेंथ L है उसमें से मान लो x पोर्शन इसके नीचे है, मतलब x लेंथ इधर है और बाकी जो लेंथ है दैट इज L माइनस x है वो इसके ऊपर है। तो टोटल लेंथ को L मान लो, तो L माइनस x इसका ऊपर है और x लेंथ नीचे है। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लेंथ ऑफ चेन, मतलब जो x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, x बाई मतलब x कितना परसेंटेज है इसका, तो x बाई L का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब देखो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करेगा, तो यूनिफॉर्म चेन है तो ये चेन का टोटल मास को हम लोग m कंसिडर कर दो। टोटल मास ऑफ दिस चेन इज नथिंग बट m एंड ए चेन का टोटल लेंथ L है। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकता है व्हाट अबाउट इट्स लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मींस मास पर यूनिट लेंथ, नॉर्मली हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इसका टोटल मास हो गया m, टोटल लेंथ हो गया L, तो यहाँ इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज m डिवाइडेड बाय L। तो उसका मतलब है कि 1 मीटर, अगर मान लो वी आर हैविंग अ चेन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड उसका मास 10 किलोग्राम है, तो उसका मास पर यूनिट लेंथ रहेगा 10 किलोग्राम बाय 10 मीटर, हमको क्या मिलेगा 1 किलोग्राम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का चेन लेगा तो उसका मास 1 किलोग्राम होगा। ऐसा ये जो रॉड है उसका मास पर यूनिट लेंथ है m डिवाइडेड बाय L। तो हम देख सकते हैं ये जो x लेंथ का जो पोर्शन है उसका मास क्या रहेगा, तो मास पर यूनिट लेंथ इज m divided by L, तो we can write the mass of portion having a length x is equal to nothing but mass per unit length। unit length के लिए m by L है, तो x distance के लिए कितना होगा into x, तो m into x divided by L will get the value of mass of length of portion having or mass of portion having length x। ये समझ में आया क्या लिखा है? नहीं सर। मास पर यूनिट लेंथ, ये इसका टोटल मास m है। Lambda is mass per unit length, but next Yeah. equation I know that. Okay. तो मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर आपको मास ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इंटू एल करना पड़ेगा ना। Yes. तो हम लोग वही कर रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ पोर्शन हैविंग लेंथ x इज लैम्डा इंटू x। Yes, sir. Yes sir. तो लैम्डा का वैल्यू क्या है, m डिवाइडेड बाय l है इंटू x। समझा बेटा? Yes, sir.
ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा सोचो, सपोज हमारे पास एक चेन है, उसका लेंथ है, अभी ये प्रैक्टिकली करके देखो तो आपको इसका आइडिया मिलेगा। इसका मास है 2 लेट्स से 10 किलोग्राम एंड Yes. इसका लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, तो अगर हमको पूछा है अगर मैंने 2 मीटर लेंथ का चेन कंसिडर करेगा तो उसका मास कितना है, तो हम लोग कैसे करेगा? या यस सेम, हमने भी वही कर रहा है। टोटल मास इज 10 किलोग्राम बाय टोटल लेंथ इज 5। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहा है, 1 मीटर के लिए 1 मीटर लेंथ के लिए मास कितना है वो ढूंढा है। Yes, समझ तो गया। 1 मीटर के लिए 2 किलोग्राम, तो 2 मीटर के लिए कितना है 4 किलोग्राम। तो हम लोग क्या करेगा, इंटू 2 करेगा। करेक्ट, Yes, सेम sir. थिंग हम लोग भी इधर भी वही करा है, वही किया है। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ पोर्शन विल गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ दैट पोर्शन। तो ऐसा जो टेबल का सरफेस में उसका लेंथ कितना था, L माइनस एक्स था। तो L माइनस एक्स पोर्शन का मास क्या रहेगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, दैट इज इनटू L माइनस एक्स। ये समझ में आया क्या लिखा है? Yes, sir. हाँ सर। क्या अभी हम लोगों का कंडीशन ये होना चाहिए, ये जो मतलब ये जो लाइक स्ट्रिंग है वो स्लाइड नहीं होना चाहिए। तो मोर अगर हमको इजीली अंडरस्टैंड करना है तो वी कैन जस्ट कंसिडर दैट ऊपर का जो पूरा स्ट्रिंग है उसको आप एक ब्लॉक जैसा कंसिडर कर दो। तो वो ब्लॉक का मास रहेगा दैट इज m डिवाइडेड बाय l इनटू l माइनस एक्स। तो इसका मास रहेगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन l माइनस एक्स। एंड इसको हमने दूसरे एक ब्लॉक के साथ, मतलब जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका मास क्या हो गया, m टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन मैंने x कंसीडर किया था। तो वी कैन जस्ट कंसीडर द सिचुएशन एज समथिंग लाइक दिस। ये समझ में आया? अभी ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो कब होगा, जब इसका जो वेट है, इसका वेट एक्सर्ट कर रहा है m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l इंटू जी, और इसके ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इसका वेट को, जो हैंगिंग पोर्शन का वेट को बैलेंस करेगा तो नीचे नहीं गिरेगा। अगर उससे ज्यादा हो गया, हमने ज्यादा पोर्शन अगर हैंग कर रहा है तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, उसको इसका वेट ज्यादा है। So बोलो बेटा। frictional force should be equal to or more than the मोर देन दैट, यस Yeah. यस यस यस। तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मैक्सिमम परसेंटेज लेंथ, मतलब हमने मैक्सिमम कंडीशन देख रहे हैं, जस्ट स्लाइड होना है, मतलब F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू दैट होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा समझा? yes. अभी हम देख सकते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है। तो इसके ऊपर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय l इंटू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू वही होगा। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स should be equal to nothing but m into g into m into x into g divided by l, and friction force क्या होता है, mu into normal reaction होता है, and mu into normal reaction should be equal to m into x into g divided by l. So mu का value question में दिया है, that is 0.25, which we can take it as nothing but 1/4. So we can write mu का value 1/4 हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो गया m into minus x into g divided by l should be equal to m into g into x divided by l. ये l al कैंसिल कर सकता है, m और m कैंसिल कर सकता है, g और g कैंसिल कर सकता है. So you can write this l minus x should be equal to 4x. So the value of l should be equal to nothing but 5x. So the value of x divided by l is equal to nothing but 1 divided by 5. Got it? तो हमको परसेंटेज लेंथ चाहिए था। परसेंटेज x का जो परसेंटेज फॉर्म में क्या होगा, x डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू 100। तो x बाय l का वैल्यू कितना था, 1/5, 1/5 इनटू 100। तो परसेंटेज में कितना हो गया, 20%। तो 20% ऑफ लेंथ अगर हैंग कर रहा है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, उससे ज्यादा होगा तो नीचे गिरेगा। समझ में आया? Sir, can you explain this again? कौन सा पार्ट से करना है या स्टार्टिंग से करना है? Sir, last part. या ये अगर वेट एक्सर्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो वो नीचे गिरेगा। वो समझ में आया? Yes, sir.
तो उसका मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए? दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट. Okay, sir. एंड फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है. Yes, sir. And normal reaction is equal to weight acting on the surface, that is m into L minus x into g divided by L. And mu का वैल्यू क्वेश्चन में 1/4 दिया है, is equal to this mgx by L. Okay, sir. फिर हम लोग कैलकुलेशन करें तो x का वैल्यू मिलेगा और x by L का वैल्यू मिलेगा 1/5. मतलब 1/5 का मीनिंग है अगर L का वैल्यू 5 है तो 1 नीचे होना चाहिए. 5 में से 1 नीचे, तो 100 में से कितना है? 20 नीचे. तो 20% लेंथ नीचे होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो नीचे गिर जाएगा. So can you zoom out a bit? Yeah. इसको एनलार्ज करना है? No, sir, it's fine. Yeah. Done. So done nothing. Yeah. Yeah. Take next one, this question number 10. It is given that when a wave travels in a medium, displacement of a particle located at a distance x at any time t is given by. So displacement of a particle at any time t is represented by the equation y is equal to a sine of bt minus cx, where a, b, c are constant of wave. The dimensions of b divided by c are same as that of. तो b by c का डायमेंशन देखना है. अभी अब देखो इसके अंदर bt minus cx कर रहा है, मतलब bt का डायमेंशनल फॉर्मूला और cx का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए. So we can write the value of b divided by c का डायमेंशनल फॉर्मूला और x by t का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए. तो इसमें दिया है x is distance and t is time. तो ये क्या रहेगा? l by t रहेगा, मतलब lt raised to -1. तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. तो इट इज velocity gradient dimensional formula for same sorry, it is 10th बंदा, yeah, wave velocity का होगा. ये हमने अभी डिस्कस किया, राइट. नेक्स्ट वन, a block sliding down a 45-degree inclined plane has half the velocity it would have been. The inclined plane is smooth. The coefficient of the coefficient of sliding friction between the block and the inclined plane is. तो क्वेश्चन का मीनिंग है, हमारे पास एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और एक रफ इंक्लाइन प्लेन है. तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से ए ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो फ्रिक्शन नहीं है, तो व्हेन इट इज रीचिंग द ग्राउंड उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू अ रफ इंक्लाइन प्लेन. ओके,
तो ये दोनों में थीटा का वैल्यू सेम है, दैट इज 45 डिग्री। तो जो मान लो एक ब्लॉक इधर से ड्रॉप किया है और इधर भी सेम ब्लॉक को हमने इधर से ड्रॉप किया है, एक में फ्रिक्शन है तो मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एक में स्मूथ सरफेस है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है। तो जब इधर आ गया तो उसका वेलोसिटी v हो गया, इधर आ गया तो उसका वेलोसिटी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्मूथ प्लेन, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v/2 हो गया। तो फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या है। तो अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन को देखेगा फ्रिक्शन नहीं है तो इसके ऊपर ओनली वेट का कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। एंड फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा along the inclined plane that will be equal to mg sin theta by m, so we can write that is equal to g sin theta। ये हो गया इधर का एक्सेलरेशन। अगर आप रफ इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करें तो उसमें क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्सर्ट करेगा, तो इसके ऊपर mg sin थीटा एक्सर्ट करेगा ये डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा ये डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स का म्यू इनटू n एंड का नॉर्मल रिएक्शन है दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो इसको हम लोग लिखना पड़ेगा म्यू इनटू mg cos थीटा इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो इधर इसका नेट एक्सेलरेशन रहेगा व्हिच इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos बाय m, तो दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। म्यू इनटू g cos थीटा is a value of acceleration over here. So you can write this a is equal to g into sin theta minus mu into cos theta। का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री दिया है, तो दोनों थीटा का वैल्यू मतलब sin 45 और tan cos 45 का वैल्यू 1/√2 आएगा। तो g into 1/√2 को भी आप कॉमन ले सकता है, तो g divided by √2 into 1 minus mu is a value of acceleration over here। एंड इधर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, g into sin 45 that is g/√2। अभी आप दोनों केस में इधर का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इधर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इधर का डिस्प्लेसमेंट l है, इधर भी सेम डिस्टेंस से ट्रैवल किया l, एंड इधर का फन सो थीटा का तो है ना g/√2 कैसा आया, मतलब a is equals to g थीटा थीटा का वैल्यू 45 दिया है, tan sin 45 1/√2 है ना सर, है ना। यस सर। तो इधर का फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, अगर v दिया तो इधर का फाइनल वेलोसिटी v/2 दिया है। दोनों साइड में इक्वेशन लिखो, इधर कौन सा इक्वेशन लिखेगा, v² minus u² is equal to 2as and here also we are going to write the same equation, v² minus u² is equal to 2as। तो इधर हमने इक्वेशन लिखेगा तो v का वैल्यू हो गया v, तो v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 is equal to 2 into a का जगह पे लिखेगा g/√2। बोलो बेटा। सर टाइम पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना अपन? नहीं टाइम अलग अलग रहेगा, टाइम सेम नहीं रहेगा बिकॉज वो फ्रिक्शन में मतलब ज्यादा टाइम लगेगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन कम है, वेलोसिटी डिफरेंट है। ओके या तो वी कैन राइट इट इज टू डिस्टेंस सेम है, दोनों में सेम डिस्टेंस स्लाइड किया है तो इसलिए हमने l को सेम ले रहा है, नॉट टाइम, नॉट द टाइम। तो कैन राइट v² इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 हो गया, 2 into g into s का वैल्यू हो गया l, एंड इधर हमने क्या लिखेगा, v का वैल्यू v/2 हो गया, तो इट इज v² divided by 4 is equal to 2 into a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था g divided by √2 into 1 minus mu into displacement that we can take it as l। तभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं या दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन राइट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ mu ओवर हियर। तो हम लोग लिख सकता है या तो अगर आप let's say this is equation number 1 and this is taken as equation number 2। अगर आप equation number 1 divided by equation number 2 कर रहे हैं तो v² and v² get cancel, so we can write this will be equal to nothing but 4 is equal to, अभी क्या हो गया, 2gl and 2gl √2 cancel हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू क्या आएगा, 1 divided by 1 minus mu रहेगा। So you can write the value of 1 minus mu is equal to nothing but 1 divided by 4, or the value of mu is equal to 1 minus 1 by 4, or you can write this will be equal to 3 divided by 4। Got it? अब सर u तो 0 लिया है ना? हाँ u 0 लिया है ऐसे, तो फिर 3/4 किससे? अच्छा mu है, mu का वैल्यू u नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
Sorry, sir. Can you show the diagram? Yeah. So please zoom out a little. Yeah. Okay. Yes, sir. Now let's go about the next one. It is given that a wedge of mass m is loaded with a sphere of mass m. If a horizontal force F is applied on the wedge, it remains equilibrium. They identify the force statement over there. So we can just consider that this system is in equilibrium. So we can draw free body diagram and we can write what are the forces acting on the system. तो पहले आप देख सकता है इसका जो weight है mg exert करेगा downward direction में कैपिटल लेटर m into g और इसका भी weight exert करेगा mg downward direction और ये दो surface के बीच में normal reaction होगा. Let's say normal reaction n is acting in upward direction and ये कोई भी दो surface contact में सबके बीच में normal reaction exert करेगा. तो ये दो surface के बीच में normal reaction होगा. ये wedge इस तरफ force normal reaction exert करेगा. Let's say n2. So it will exert equal and opposite normal reaction over here. That is we can take it as n2. अभी ये इधर भी एक contact है. तो ये दोनों के बीच में भी normal reaction exert करेगा. This wedge is going to exert some force on the like wall. Let's say that normal reaction is n3. So this wall is going to exert some force on normal reaction on this ball that we can take it as something but n3 over here. Other than that, तो mg हो गया, weight हो गया और एक force इधर F exert कर रहा, right? Yeah. So these are the forces acting on the system. The ball will also exert normal reaction on wall. Yeah, वो n3 है ना? बॉल इसके ऊपर n3 एक्सर्ट कर रहा है तो ये बॉल के ऊपर n3 एक्सर्ट कर रहा है. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. समझा? Yes. सर n3 में बॉल पे डाल रहा है और फिर बॉल इस पे डाल रहा है. एक और बार बोलो. सर
N3 में बॉल वॉल पे डाल रहा है और फिर रिएक्शन डाल रहा है बॉल पे दोनों देखना है. We should write all the forces acting on it. बॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है N3 और उतना ही फोर्स है इसके ऊपर भी एक्सर्ट करेगा. तो हमने इसलिए दो फोर्स देखा है ना उधर. So what about wedge? Wedge will also exert an normal reaction on wall, right? नो wedge और वॉल के बीच में कांटेक्ट नहीं है. देखो ये दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है. Yes, sir. ओके स्पेस है इसके बीच में, तो एक्सर्ट नहीं करेगा. ओके और कुछ डाउट है जो फोर्सेस में? No. इज इट क्लियर? ओके अभी हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. तो अब कौन सा ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है? तो वी शुड ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. विल नॉट ड्रॉ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर मान लो मैंने जो कैपिटल लेटर M है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, तो इसका ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी इसके ऊपर mg एक्सर्ट कर रहा है एंड ए सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है n. अदर देन दैट ये जो बॉल है वो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा था n2, तो ये इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है n2. तो हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकता है कि दिस इज गोइंग टू, वो ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा. तो मतलब ये एंगल इसको थीटा दिया था एंड नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर रहेगा. तो वी कैन राइट इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू Yes, थीटा. theta. तो ये एंगल क्या रहेगा? थीटा रहेगा. और हमने इसके ऊपर टुवर्ड्स राइट में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F. करेक्ट? तो F हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ एंड बॉल ये जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन एक्सर्ट कर रहा है वो भी हमने ड्रॉ किया है. समझ में आया? तो these are the forces acting on the object on the wedge. अभी हम देख सकते हैं ये जो मास m है, स्मॉल लेटर m है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो देखते हैं. इसका वेट एक्सर्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एंड वॉल इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, दैट हमने कंसीडर किया था n3. और ये जो लाइक इंक्लाइन प्लेन है वो बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था ये डायरेक्शन में, that we consider it as nothing but n2 and that n2 is going to make an angle theta with respect to the vertical. तो ये angle हो गया theta. Correct? तो these are the forces acting on that. तो n2 हो गया, n3 हो गया, mg हो गया. Right. These are the forces. Diagram कुछ डाउट है? Sir, with respect to horizontal theta होगा ना? With respect to नहीं अभी देखो ना, ये अगर हमने इसका ही ऑपोजिट था ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा ना. Yes. Now we can write अभी क्वेश्चन में क्या दिया? इक्विलिब्रियम दिया है. अभी देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है. Rm is to Rm is to find out the value of n1, f, n2 and n3 in terms of mg का टर्म में फाइंड आउट करना है, where n1 is reaction between the wedge and the sphere and n2 is a reaction between the sphere and the vertical and n3 is a reaction between ground and the wedge. तो ground और wedge का बीच में है तो उसको हमने n3, मतलब हमने जो n लिखा है वो n3 है. ओके तो अब इसको n3 मान लो, बाकी n2 और n2 और n1. Sir, n2 n1 हो जाएगा सर. या ओके. तो एनीवे आप ऐसा फाइंड आउट करो, बाकी आप देख लो. ठीक है. तो यू कैन राइट इसका जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखता है, तो वी कैन राइट इसके ऊपर इसको हमने n2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता है. सो यू कैन राइट कंपोनेंट ऑफ n2 along this direction will be equal to nothing but n2 sin theta, and component of n2 along this direction which we can take it as n2 cos theta. तो हम लोग इधर इक्विलिब्रियम में कंडीशन लिख सकते हैं, net force acting towards right should be equal to force acting towards left and force acting towards in upward direction to be equal to force acting in downward direction. तो एक इक्वेशन तो लिख सकता है n2 sin theta is going to be the value of f. तो एक इक्वेशन आ गया, टेक इक्वेशन नंबर 1 into sin theta plus m. No. n2 sin theta is acting,
and force acting in upward direction is n, and force acting in downward direction is n2 cos theta plus कैपिटल लेटर m into g, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको सबका वैल्यू एम जी का टर्म में फाइंड आउट करना है, तो अभी आप नेक्स्ट का इक्विलिब्रियम कंडीशन में से इसको भी रिजोल्व करके इक्वेशन लिख देते हैं। तो n2 का ए वाला कंपोनेंट हो गया, दैट इज इक्वल टू n2 cos theta, and this component we can write this is equal to n2 sin theta, right? अभी हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन से इक्वेशन, तो राइट इज n2 sin theta, that should be equal to n3, and force acting in upward direction is n2 cos theta, that is equal to mg। तो एक तो आंसर जो इसमें से मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ n2 cos theta is equal to mg से n2 का वैल्यू मिलेगा, that is equal to mg divided by cos theta, right? तो n2 का वैल्यू मिल गया। अभी हम देखते हैं n2 का वैल्यू मिले तो n3 का वैल्यू मिलेगा ए इक्वेशन से, n3 is equal to n2 sin theta, n2 का वैल्यू था mg डिवाइडेड बाय cos theta into sin theta, sin theta by cos theta tan theta हो गया, तो n3 का वैल्यू भी मिल गया, that is mg tan theta। अभी n2 और n3 पता है तो हम लोग n1 का वैल्यू ढूंढ सकता है या n का वैल्यू ढूंढ सकता है। सो ओवर हियर ये f का वैल्यू है इक्वेशन से, f का वैल्यू क्या होगा n2 sin theta, एंड n2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था mg by cos theta, तो स्मॉल लेटर mg डिवाइडेड बाय cos theta into sin theta is a value of f, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा स्मॉल लेटर mg into tan theta हो जाएगा। एंड अभी हम लोग n का वैल्यू भी निकाल सकता है, thus the value of n is equal to nothing but n2 cos theta plus mg, n2 का वैल्यू था mg divided by cos theta into cos theta plus, क्या बोला बेटा? सर n2 cos theta is equal to mg दिया हो, सॉल्व हुआ है सर वो देखो ऊपर n2 cos theta, Yeah, so you can write this will be equal to m plus m into g is the value of this n over here। हम लोग सबका वैल्यू mg का टर्म है या m का टर्म में लिख सकता है। बोलो बेटा। सर कौन किस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं समझेगा कैसे? वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इज, तो किधर किधर कांटेक्ट फोर्स में आता है, टच होता है, हर एक सरफेस में हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट लिखना पड़ेगा। अदर देन नॉर्मल रिएक्शन वेट तो एक्सर्ट करेगा, स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं है। तो बेसिकली हमको चार फोर्सेस देखना है, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड वेट। वेट तो एनीवे रहेगा, कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, स्ट्रिंग नहीं है इसलिए टेंशन नहीं है, स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शन नहीं है। तो खाली ये चार फोर्सेस देखना है। Got it? Yes, sir, got it. Yeah. Sir, can it show
Okay. Yes, sir. इसमें होमवर्क में कुछ डाउट है? No, sir. तो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा लेवल 1 लेवल 2 में जो होमवर्क दिया इसमें कुछ किसी कुछ डाउट है? लेवल 1 में होमवर्क और क्लास वर्क दिया था। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो वेक्टर्स और रिलेटिव मोशन का बेसिस में होगा। ओके, तो अभी तक कोई उसका डाउट पूछना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वेक्टर्स और रिलेटिव मोशन का अभी तक कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो वेक्टर्स और रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ओके सर। तो हमने लास्ट पार्ट में जो फ्रिक्शन डिस्कस किया था, तो अभी हम लोग उसका फ्रिक्शन का आगे कंटिन्यू करते हैं। So there we discuss about that static friction and like kinetic friction and how to find out the value of friction in different situation. अभी हम लोग देखते हैं what about the value of minimum amount of force which is required to displace an object. तो क्वेश्चन में दो तरीके से इसको पूछ सकता है, so you should not get confused with that. Some type of question they will give it something like this. Assume that we are having a block like this of mass m which is kept on a horizontal surface. Okay, and coefficient of friction over here is equal to, take it as mu, and इसका weight exert कर रहा है mg downward direction में, तो normal reaction is acting in upward direction, and our aim is to find out what about the minimum force required to displace this block. Okay, क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा what about the minimum force required to displace this block. तो इसमें अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है what about the minimum force required to minimum force in horizontal direction to displace this block, तो अगर हमने horizontal direction में force exert कर रहा है F, and इसका then if it is trying to move towards right, तो friction will act towards left. तो ये horizontal direction में move करेगा if the value of applied force is greater than friction, और minimum value of F should be equal to nothing but F, तभी तो slide होगा. Okay, तो ये situation में अगर हम लोग equation लिख रहे हैं तो देख सकता है the value of F should be equal to F. F का value क्या mu into n होगा, तो we can write the value of this mu into n का value क्या होगा, mg होगा. So we can write the value of minimum force in horizontal direction to displace this block should be equal to mu into m into g. Okay, अभी देख सकता है इससे भी कम फोर्स एक्सर्ट करके ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं. ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, नॉट हॉरिजॉन्टल, ऐसा दिया, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्पेसिफाइड नहीं किया डायरेक्शन. अब कोई भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, हमारा पर्पस है कि इसको डिस्प्लेस करना है. ओके, तो जस्ट कंसीडर टू सिचुएशन. देयर इज वन सिचुएशन में हम लोग के पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m, एंड सेकंड सिचुएशन में भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सेम ब्लॉक है ऑफ मास m which is kept on a same type of surface, ताकि इधर भी coefficient of friction का वैल्यू mu है और इधर भी coefficient of friction का वैल्यू mu है. एंड एक सिचुएशन में हम लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर और इसको डिस्प्लेस करना है. तो एक सिचुएशन में हम लोग इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ये डायरेक्शन में,
and which is making some angle theta with respect to the horizontal. And second situation में हम लोग इसके ऊपर force exert कर रहे हैं ये direction में, and this is making an angle theta with respect to the horizontal. Alright, मतलब एक time में हम लोग इसको pull करके displace करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, second situation में हम लोग इसको push करके displace करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. Got it? तो अगर हम लोग ये दोनों situation को individually देखेगा तो देखो क्या फर्क होता है इसमें. If you are trying to displace this block by pulling it, means हम लोग इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये डायरेक्शन में, इसको पुल कर रहे हैं हम लोग ये डायरेक्शन में, एंड वी आर एक्सर्टिंग सम फोर्स एफ, एंड लेट्स से दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. तो हम लोग ये फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स. कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू एफ cos थीटा, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू एफ sin थीटा. एंड इसका मास m था तो इसका वेट एक्सर्ट करेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन n इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो F cos थीटा की वजह से ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट स्लाइड करने के लिए कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. अभी हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिख सकता है ये सिचुएशन में, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा म्यू इनटू n. अभी ये सिचुएशन में अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू दिखेगा तब देखो फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन दिस ऑब्जेक्ट आर, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, और ये जो F sin थीटा का कंपोनेंट है देखो ए भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है. तो नेट फोर्स एक्टिंग इन एंड ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्टिंग अपवर्ड शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. तो वी कैन राइट ओवर हियर द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg. सो ये सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा mg माइनस F sin थीटा. ये समझ में आया? यस सर. तो अगर हमने फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिखेगा सो विल गेट म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg माइनस F sin थीटा हो गया. तो अब इधर देख सकता है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, mg से कम आ रहा है. समझ में आया? तो हम लोग पुल करके लेके जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है. अगर हमने हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्सर्ट कर रहे, फर्स्ट सिचुएशन में देखो हम लोग हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, तो ये सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg था तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg मिला है. बट अगर हमने ये सेम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, इसको कुछ एंगल थीटा पे अगर पुल कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम हो गया, mg माइनस F sin थीटा हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया. तो हम लोग कम फोर्स यूज करके उसको डिस्प्लेस कर सकता है. अभी आप देखो थर्ड सिचुएशन में अगर मैंने इसको पुश करके लेके जा रहा है तो क्या होता है. तो assume that our aim is to displace this block, so we are exerting some pushing force. हम लोग इसको पुश कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब फोर्स ऐसा एक्सर्ट करके इसको डिस्प्लेस करने के लिए कोशिश कर रहा है, एंड लेट्स से वी आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. तो इधर हम भी हमने फोर्स को रिजॉल्व करता है. फोर्स का ए वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा F sin थीटा, और इसका वेट एक्सर्ट कर रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये टुवर्ड्स राइट जाने के लिए कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. ओवर हियर अब देखो अगर ये केस में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन देख रहा है तो फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन आर एक n एक्सर्ट कर रहा है, एंड फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg प्लस F sin थीटा. तो इधर आप देखो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू n. तो ओवर हियर फ्रिक्शन फोर्स रहेगा mg प्लस F sin थीटा. समझ में आया तीनों डिफरेंट सिचुएशन? तो जब हमने पुल करके लेके जा रहा है तो हमारा जो फोर्स का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड भी एक्सर्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो डिस्प्लेस करना डिफिकल्ट रहेगा. तो अगर क्वेश्चन में पूछा इट इज इजी टू पुश अ ब्लॉक और पुल अ ब्लॉक, तो इट इज इजी टू पुल द, वो इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम है. समझ में आया? So just write down these three different situations. So you can write the heading: minimum force required to displace a block. Minimum force required to displace a block. There you can write first condition when force is acting parallel to the surface. When force is acting parallel
to the surface. तो सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg होगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg होगा, तो मिनिमम हम लोग म्यू mg एक्सर्ट करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करके लिख दो। सर बोलो बेटा। सर इसमें फोर्स एक्ट किया तो वो आगे की तरफ जाएगा ना, तो आपने इक्वेट को किया फ्रिक्शन। नहीं, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए वो पूछा है। अगर F का वैल्यू F फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तभी तो स्लाइड होगा ना, तो मिनिमम हम लोग म्यू mg या म्यू mg से थोड़ा ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ यस सर। ये कंडीशन लिख दिया, हो गया। Yes, Yes, sir. sir. Now next situation, when we are exerting some pulling force. Done, sir. Okay. And on the third situation, which is pushing. Sir, can you scroll up? Yeah, 1 minute.
हो गया? Yes, sir. No, sir. 1 minute. Yeah. Yes, sir. Yeah. तभी हमको इतना तो समझ में आया, it is easy to displace it by pulling rather than pushing it. अभी हम लोग ये भी फाइंड आउट करना है, what about the minimum force required to displace it, और हमको मतलब कौन सा एंगल, हमने बोला कि कुछ एंगल थीटा पे एक्सर्ट कर रहा है, तभी वो भी फाइंड आउट करना है कौन सा थीटा पे हम लोग को उसको फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए, so that we'll be able to displace it with a minimum force. So you can write the heading minimum force required to displace an object on a rough horizontal surface. On rough horizontal surface. तो हमने already discuss किया, if you are keeping an object on a rough horizontal surface, it is easy to displace it by exerting some force, making some angle theta with respect to the horizontal. अभी हम लोग ये find out करने वाला है, ये theta का value कितना होना चाहिए, so that minimum force हम लोग इसको displace कर सकता है. So you can write component along this direction is f cos theta, and component of force along this direction is nothing but f sin theta. Weight of this object mg is acting in downward direction, normal reaction is acting in upward direction, and as it is trying to move towards right, frictional force acting towards left. So you can write, if you like to displace it, the value of f should be greater than, or the value of minimum value should be equal to nothing but friction, and the value of friction should be equal to nothing but coefficient of friction into normal reaction. So we can write the value of f cos theta should be equal to mu into normal reaction का value हमने find out किया था, that was nothing but mg minus f sin theta. So we can write the value of f cos theta should be equal to nothing but mu mg minus mu into f into sin theta. Or you can write the value of f cos theta plus mu f sin theta should be equal to nothing but mu into m into g. अभी देखो ये क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, एंड वो कौन सा थीटा के लिए होगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि f का वैल्यू मिनिमम आएगा. तो इस सिचुएशन में हमने बेसिक मैथ्स पे डिस्कस किया था द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या था, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेगा, so the value of dy by dx should be equal to 0. इधर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हम लोग लिखा है, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन है द वैल्यू ऑफ df डिवाइडेड बाय d थीटा should be equal to 0. तो टू फाइंड आउट द मैक्सिमा और मिनिमा इसको डिफरेंशिएशन करना है और इक्वल टू 0 करना है. तो वी कैन राइट, ये जो f है उसको आप कॉमेंट ले सकता है. So we can write f into cos theta plus mu sin theta should be equal to nothing but mu into mg. अगर हमने ये टर्म को डिफरेंशिएशन करेगा, so we can write equate that to 0. ये जो cos theta है, cos theta we are differentiating with respect to theta. So cos theta का जो डिफरेंशिएशन है, that we can take it as nothing but cos theta का डिफरेंशिएशन होगा sin minus sin theta plus mu into
sin theta का differentiation होता है cos theta and df by dt should be equal to 0. So we are equating that to 0. तब देख सकता है the value of mu cos theta should be equal to nothing but sin theta, or the value of sin theta by cos theta, which is tan theta, should be equal to mu. That means we should exert a force F while making an angle theta with respect to the horizontal, where the value of theta should be equal to tan inverse of mu. Then that situation we can displace it by using a minimum force. तो ये जो theta का value है, कोई भी एंगल पे एक्सर्ट करना नहीं होगा, वो थीटा का वैल्यू एफ का वैल्यू मिनिमम रहेगा व्हेन दैट थीटा इज tan inverse of mu. Got it? Around this one. Sir, can you explain from fourth step? Yeah. अभी हम लोग इसको क्या है, we are having an equation, उसमें f का टर्म भी है, थीटा का टर्म भी है, okay? Like y as a function of x. Yes, sir. तो over here हमको find out करना है what should be the minimum value of f, और वो कौन सा value of theta पे होता है. Sir, can you zoom out more? Okay. Little bit. तो हम लोग क्या करेगा, अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन मतलब y is equal to a function of x दिया है, मतलब let's say y is equal to x square plus 2x plus 3 ऐसा कुछ दिया है, आपको इसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेगा, इसका dy by dx का वैल्यू फाइंड आउट करेगा और इक्वल टू 0 करेगा, राइट? Okay. Yes, sir. तो we'll get for what value of x, the value of y is going to be maxima और y is going to be minima. तो इधर भी हम लोग को f और थीटा का टर्म और रिलेशन मिल रहा है, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, df by d theta should be equal to 0. तो हमने इसको डिफरेंशिएशन किया है एंड इसको इक्वल टू 0 कर दिया है. Okay, sir. सो अब याद रखो, ये थीटा का वैल्यू है वो tan इनवर्स ऑफ म्यू होना चाहिए, so that we will be able to displace it by using a minimum force. Sir, can you show the right side part? नहीं, इधर कुछ लिखा नहीं, like just nothing related to this. सर फिफ्थ स्टेप के बाद क्या किया? उसको हमने डिफरेंशिएशन किया है, उसको इक्वल टू 0 कर दिया. तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, म्यू कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इक्वल टू 0. Yes, sir, done writing.
Okay, so we'll continue in next class. Thank you.